नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर, अरसलान बिरयानी एंड माही बैंकेट हॉल। आइए सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिल्पांचल में अपने सामाजिक कार्यों की वजह से जाने जाने वाले समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने आज राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि वीरभूम जिले के तारापीठ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा के दौरान आज कृष्णा प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ज्ञात हो कि तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ कृष्णा प्रसाद की नजदीकियां रही है। हालांकि कुछ दिनों पहले मंत्री मलय घटक की कृष्णा प्रसाद ने खुलकर आलोचना की थी। पिछले कुछ महीनों से कृष्णा प्रसाद की कोई भी गतिविधि नहीं देखी जा रही थी। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले कृष्णा प्रसाद का भाजपा में शामिल होना कई बातों की तरफ इशारा कर रहा है। উল্লেখযোগ্য মুহূর্তে আমাদের মধ্যে একজন সমাজসেবী ভারতীয় জনতা পার্টি পতাকা দলে আজকে তিনি অংশগ্রহণ করছেন, ওনাকে যোগদান করাচ্ছেন পশ্চিমবাংলার রাজ্য সভাপতি মাননীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়। আজকে ওনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের জন্য আমি ডেকে নিব বীরভূম জেলার জেলা সভাপতি তথা छात्र नेता। डीवाईएफआई सहित 10 संगठनों ने आज एक जुलूस निकालते हुए 11 फरवरी को नब्बन चलो अभियान का आह्वान किया है। इस अभियान के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं के काम की मांग की जाएगी। डीवाईएफआई की पहल पर यह जुलूस तेंदुआ से कालीतला मोड़ तक निकाली गई। इसके अलावा इसी दिन सलानपुर के कालीतला में एक बंद परियोजना भूषण स्टील फैक्ट्री की प्रतीकात्मक आधारशिला रखी गई थी। আজকের দিনের কর্মসূচি বলতে আগামী 11 তারিখ আমরা এসএফআই ডিওয়াইএফআই আরও 10টা বামপন্থী যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে নবান্ন চলো অভিযানের ডাক দিয়েছি। ওই ব্যানারে লেখা আছে, আপনারা দেখতে পারবেন যে যাহা 52 তাহাই 56, হাল ফেরাও লাল ফেরাও, শিক্ষা চাই কাজ চাই। এখন বিগত 10 বছর ধরে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বেকার যুবকদের সাথে যে ভাওতা যে ছিনিমিনি খেলায় পশ্চিমবঙ্গের সরকার খেলেছে সেটা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এই 14 সাল থেকে বিজেপি সরকার কেন্দ্রে আসার পর থেকে। প্রত্যেক দিন শুধু এই হিন্দু মুসলমান ধর্ম এই সমস্ত নিয়ে বেকার ছেলেদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখা হচ্ছে। তাদের জীবনের আসল যে সমস্যা কাজ, শিক্ষা, ছাত্রদের শিক্ষা, কাজ, এই ব্যাপারগুলো দিনের পর দিন নেগলেক্টেড হয়ে চলেছে। আমরা এর আগেও দুবার নবান্ন গেছিলাম। আমরা নবান্ন গেছিলাম ডেপুটেশন দিতে এই মীনাক্ষী মুখার্জি, সায়নদীপ মিত্রদের নেতৃত্বেই। সেদিন আরও হাজার হাজার ছেলেপেলেকে রাস্তায় ফেলে মমতা ব্যানার্জির পুলিশ মেরেছিল। আমরা এবার পরিষ্কার বলতে চাই, আমরা কোনো ডেপুটেশন দিতে কিন্তু এবার যাচ্ছি না। আমরা এবার যাচ্ছি পরিষ্কার লাল কার্ড দেখাবো নবান্নর মালকিনকে এবং পরিষ্কার বলে আসবো যে হাল ফেরাও লাল ফেরাও। ওনার টাইম হয়েছে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট আসছে। তার আগে আমাদের রাজ্য সম্পাদকের বার্তা, আমাদের রাজ্য সভানেত্রীর বার্তা যে নবান্নটা একটু ঝাড়পোছ করে পরিষ্কার করে আসতে আমরা এই 11 তারিখ নবান্নে যাচ্ছি। আর এই সালানপুরে প্রায় 10,000 কোটি টাকার ভূষণ স্টিলের প্রকল্প আসার কথা ছিল বামপন্থী সরকারের সময়। সেই সময় নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, শালবনী যেভাবে মমতা ব্যানার্জি সরকার নষ্ট করে দিয়েছে, এখানে সালানপুরেও শিল্পের সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছে। আমাদের পরিষ্কার কথা, আমরা আজকে প্রতীকী শিলান্যাস করব সালানপুরে ওই কালীতলার মোড়ে। প্রতীকী শিলান্যাস করবেন আমাদের সভানেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি এবং আমরা বলছি বাম ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার এখানে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এই সালানপুরেই আবার কারখানা হবে। এই বেকার যুবদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার আজকে প্রথম ধাপ। আজকে আমরা এই প্রতীকী শিলান্যাস অনুষ্ঠান এখানে করতে চলেছি। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম আবির ঘোষ, আমি ডিওয়াইএফআই এর এখানকার সালানপুর আঞ্চলিক কমিটির আহ্বায়ক। अभी वैक्सीन निकल गया, ये कोरोना का वायरस तो दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन मोदी और ममता वायरस सबको दिखाई देते हैं, आप चाहे और ना चाहे। अरे वैक्सीन बेर करते गए
আপনি চান বা না চান আপনাকে লাল ঝান্ডা সাদা ঝান্ডাটা নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতেই হবে কারখানা তৈরির জন্য, নইলে মোদি মমতার ভ্যাকসিন বেরোবে না মোদি মমতার ভ্যাকসিন। মমতা ব্যানার্জি আজকে বলছেন পশ্চিমবঙ্গে যে আমরা কারখানা তৈরি করব, আরে একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হয়েছে। এই গোটা পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে 10 বছরে 700 কারখানার কাছাকাছি বন্ধ হয়েছে। এই 700 কারখানাতে, ছোট মাঝারি কারখানাতে কারা কাজ করতো? প্রায় 70,000-এর কাছাকাছি ছেলে মেয়েরা চাকরি করতো। বললো 700 কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, বিধায়কের নেতৃত্বে শুধুমাত্র পেপসিকো কারখানাটা চলবে না? তাদের রেকমেন্ডেশনে চাকরি হবে, তৃণমূলের নেতাদের নাম লিখে দেবে, তাদের চাকরি হবে। চাকরি হবে তো? চাকরির মতন চাকরি হবে তো? হবে না। যান দেখে নিন বাইপাসের ধারে পেপসিকো কারখানাতে যে ছেলেটা কাজ করতে ঢুকছে, চাকরি নেই। কেউ 10 দিন কাজ করছে, কেউ 15 দিন, কেউ 20 দিন। কেন? কারণ 1 মাস যদি কাজ করে তাহলে তার পিএফ এর খাতা করে দিতে হবে। 1 মাস যদি কাজ করে তাহলে তার ইএসআই করে দিতে হবে। 1 মাস যদি কাজ করে তাহলে তার পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে। 1 মাস। आसनसोल के ईएसआई अस्पताल के बीएससी नर्सिंग कॉलेज के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक ने फीता काट के किया। इस अवसर पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के सपनों को साकार किया जा रहा है। আমাদের এই অনুষ্ঠানটাকে আরো সুন্দর। প্রিন্সিপাল এনটিসি মানিকতলা মাননীয়া শ্রীমতী রুমা মণ্ডল ম্যাডাম, ফ্যাকাল্টিজ অফ এনটিসি মানিকতলা অ্যান্ড শিয়ালদা, এনাদের সকলের সচেষ্ট উদ্যোগে রাজ্য আছেন আমাদের আসানসোলে বিএসসি নার্সিং কলেজ, যেটা আজকের থেকে 4 বছর আগে শুরু হয়েছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে আজকে তার পূর্ণতা পাচ্ছে। একটু আগে অনেকেই তাদের বক্তব্যে জানিয়েছেন যে কিভাবে এই কলেজ তৈরি হলো। প্রায় 10 বছর আমাদের এই সরকার, মামাটি মানুষের সরকার পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে 6 বছর ইএসআই দপ্তরের দায়িত্ব আমাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন এবং এই 6 বছরের মধ্যে আমরা এই 6 বছরেই ভারতবর্ষে ইএসআইয়ের শ্রেষ্ঠ পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রথমবার 22 কোটি টাকা, পরের বার 24 কোটি, তারপরে 30 কোটি, 35 কোটি এবং গতবার 50 কোটি টাকা আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা পেয়েছি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ইএসআই পরিষেবা দেওয়ার জন্য। এবারে মানিকতলা ইএসআই ভারতবর্ষের 500 বেডের যে হসপিটাল, সেই হসপিটালের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে। শ্রেষ্ঠ হসপিটাল মানিকতলা ইএসআই 500 বেডের, এবং 300 বেডেরটাও আমরা পেয়েছি। 300 বেডের হসপিটাল বেস্ট হসপিটাল হয়েছে শিয়ালদা ইএসআই। তো वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। आसनसोल में दोस्तों की महफिल जमेगी अब तीखी मिर्ची के साथ। स्ट्रीट फूड बट नॉट ऑन स्ट्रीट, बेस्ट क्वालिटी की बिरयानी, साथ ही वेज और नॉन वेज डिशेस के साथ हर तरह के पराठे। टेस्ट ऐसा कभी खाया न हो जैसा। दोस्तों और फैमिली के साथ आज ही आए तीखी मिर्ची, बूदा मोड़ नियर देश प्रेमी क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9800378870 and 9144852265। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल,
सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली, समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कॉन्टैक्ट करें 9334098841 8768822128। आसनसोल साउथ ब्लॉक तृणमूल माइनॉरिटी सेल की ओर से वार्ड नंबर 95 में सैकड़ों लोगों के बीच कंबल वितरित किए गए। साथ ही संगठन से जुड़े लोगों और अतिथियों को उत्तरी और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। टीएमसी माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष सैयद अफरोज, ब्लॉक अध्यक्ष एसएम जकी, आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य अंजना शर्मा, पूर्व काउंसिलर भरत दास, अमित घोष, रामबन मस्जिद के इमाम साबिर खान, एमडी फिरोज, सैयद आसिफ आदि उपस्थित थे। बंगाल में दीदी ने कहा कि कोई भी मजदूर चाहे वो दूसरे जिला या दूसरे राज्यों से आकर यहाँ पे अपने रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता आप लोगों तक पहुंचेंगे और आप लोगों की हर जरूरतों को पूरा करेंगे। और आप लोग सभी लोग इसको बेहतर तरीके से जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने किस तरीके से कोरोना में एक एक घर जाकर, हर जरूरतमंदों के घर जाकर उनका हाल चाल पूछा और जो भी उनकी जरूरतें थी उनको अपने तौर पे पूरा करने की कोशिश की। बराकर के बेगुनिया बाजार के लायकपड़ा डाकघर के पोस्टमास्टर पर स्थानीय खाता धारकों ने गंभीर आरोप लगाते हुए मैच्योरिटी का पैसा देने में देरी करना तथा रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। खाता धारकों का कहना है कि यहाँ काफी संख्या में हर रोज ग्राहक आते हैं और उनका कोई काम नहीं होता है। उन्होंने पोस्टमास्टर के ट्रांसफर की मांग की है। इस विषय में डाकघर के पोस्टमास्टर अरुण दास का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी होने के कारण देरी हो रही है। वहीं पैसे की मांग को उन्होंने सरासर गलत बताया। मेरे देवे धमकी दे रहा, बोरा मार देंगे तुमको। समझ के बात करो, बोले मारेंगे तुम लोग को। ऐसे बोला पोस्टमास्टर, ऐसे बोल रहा, पैसा नहीं मिला पब्लिक को, हैरेसमेंट कर रहा हम लोग को। और तुमको देख लेंगे, आज होने तो तुमको देख लेंगे, मार देंगे तुम लोग को। घोष चाहिए, घोष पैसा चाहिए, घोष चाहिए। ये मेरा घर है, यहाँ पर डेली का झमेला होता है। इसका लिए किस चीज़ के लिए बस यही, किसी का बोलता है लिंक नहीं है, लिंक रहने से भी लिंक नहीं है। एजेंट आता है, अंदर में काम 2 बजे के बाद काम होता है, सबको भगा देता है, घूस मांगता है, यही काम। बेगुनिया बाजार जो पोस्टमास्टर है ना, उनका नाम है अरुण दास। पब्लिक को डेली घुमा रहा है, मैच्योरिटी होने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है। खाता में दिखा रहा है आपको, किसी को 60,000 आप पेमेंट बोल रहा है 58 उसका मैसेज में दिखा रहा है। तो बोला कम क्यों? बोला कम आपको लेना होगा तो तुरंत पेमेंट हो जाएगा, नहीं 60,000 लेना होगा तो आपको वहाँ लिख के भेजना पड़ेगा, हमको कम से कम 1,000 रुपया घूस देना पड़ेगा खर्चा। कि आप लोग थोड़ा हमको समय दीजिए काम करने का। बात है कि आपके ऊपर में आरोप है कि आपके पास जो भी काम कराने के लिए आता है आप 1,000 रुपया मांगते हैं, बोलते लिंक नहीं है, 28 दिन के बाद आइए। देखिए ये सब गलत है। बात है कि जब भी किसी का साथ कोई बातचीत हो जाता है तो अपना पक्ष लेके वो लोग ये सब करता है। इसके लिए तो भी पुलिस है, थाना है, ये सब तो है। बात है 22 तारीख से हम लोग से लिंक एकदम स्लो है। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग हमको थोड़ा टाइम दीजिए। तो
ये लोग को दूसरा सोच में आ गया कि हम लोग को काम छोड़ के दूसरा का काम करना, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये रिपोर्ट हम डिविजनल को किए हैं, वो लोग आप भी चेक किया है, वो लोग बोला थोड़ा टाइम लगेगा, काहे कि ये जो प्रॉब्लम हम लोग का है ये कोई मशीनरी प्रॉब्लम है। वो लोग अपना CPC से आके बात करेगा, काम करके ठीक करेगा। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। महिलाओं का पसंदीदा शोरूम स्टाइल, ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार, सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। स्टाइल्स के कलेक्शन अपनाएं। स्टाइल्स, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल। कॉल 76029223। अगर आप हैं चिकन खाने के शौकीन और ट्राई करना चाहते हैं चिकन के अलग अलग डिशेस जैसे फ्राइड चिकन, चिकन स्ट्रिप्स, हॉट विंग्स या फिर चिकन सैंडविच, कबाब या बिरयानी, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अफजल फ्राइड, हाटन रोड नियर इंडियन स्पोर्टिंग क्लब। अफजल फ्राइड चिकन, यहाँ आपको चिकन के अलग अलग डिशेस के साथ कई तरह के कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे। साथ ही फ्राइडे 10% ऑफ। डोंट फॉरगेट, अफजल फ्राइड चिकन इज बेस्ट। जब बात हो बिरयानी की तो मुंह में आ जाए पानी, याद आए बस एक ही नाम, अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी, क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं। आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाएं लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वैरायटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही आए अरसलान, किंग ऑफ बिरयानी, आसनसोल नियर बस्तिन बाजार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।